Okay, good afternoon all. It's lecture time. Let us come ahead towards starting up the lecture. Okay, in our last lecture of economics, up to this point of time, we have studied various concepts of utility. First, we have studied meaning of utility. Second, we have studied types of utility. Third, features of utility. Fourth, law of diminishing marginal utility. Fifth was assumptions or conditions of the law. And sixth, exceptions to the law of diminishing marginal utility. I would again give you a reminder, dear friends, that till this point of time, the Maharashtra State Board has not yet released the paper pattern for the new syllabus, but in the old paper pattern, out of 80 marks, utility analysis chapter had weightage of 15 marks, 1-5. This shows a relative importance of this chapter, which you should remember. Today, we are going to discuss the third part of utility analysis and the last part of this year chapter. Dear friends, आज हम इस चैप्टर में दो पार्ट स्टडी करने वाले हैं. एक स्टडी करेंगे criticisms or drawbacks of the law and second one would be the importance of the law. देखो, ये दो कंसेप्ट्स क्लियर करने के लिए मुझको जितनी देर लगेगी उतनी देर आज मैं लेक्चर लेने वाला हूं. अगर 30 मिनट्स में कंप्लीट हो गया, आई विल रिलीव यू बाय 30 मिनट्स एंड 1 आवर 30 मिनट्स लगा तो 1 आवर 30 मिनट्स तक लेक्चर चलेगा. ओके, ideally it would require 40-45 minutes. So let us go ahead towards the other thing. Whatever doubts you may have, make a note of it. Last में मैं आपको जब पूछूंगा तब वो doubts पूछना मुझको. Okay, now I'm going up to the other screen. We'll start up with the discussions. Okay, so in economics, today, utility analysis, part 3. Now, we had studied one law called as law of diminishing marginal utility. That law very specifically said, the more we get, the less we want. इस law के कुछ assumptions थे, कुछ exceptions थे. But आज हम उसके अंदर कॉन्सेंट्रेट करने वाले हैं क्रिटिसिजम्स ऑफ द लॉ. क्रिटिसिजम्स मतलब ड्रॉबैक्स, मतलब प्रॉब्लम्स. तो इस लॉ के प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशंस में हमको कुछ प्रॉब्लम्स विटनेस करने पड़ रहे हैं. तो लेट अस सी व्हाट आर दोस प्रॉब्लम्स. द वेरी फर्स्ट problem what we have about this law is unrealistic assumptions. While discussing this theory, I had very specifically said that the law has various assumptions, multiple assumptions, but modern economics बोलता है कि इनके ये जो assumptions है वो unreal है. Unreal है मतलब कुछ ऐसे assumptions है जिनको हम real life में implement नहीं कर सकते. We cannot implement those things into the real life. तो ऐसे कौन कौन से assumptions है? जैसे पहला assumption था unreal assumption called as homogeneity. ये कंडीशन, ये assumption, लॉ का ये assumption हमको क्या बोलता था कि भाई होमोजेनिटी मतलब कि आपका प्रोडक्ट आप जो कंज्यूम कर रहे हो वो आइडेंटिकल सेम प्रोडक्ट होना चाहिए.
अभी जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, आपको आलू का सब्जी बहुत पसंद है, यू लव पोटैटो, आलू का सब्जी बहुत पसंद है। मम्मी ने लंच में वो बनाया, शाम को डिनर में भी वापस से वही बनाया, अगले दिन लंच में भी वही बन रहा है, और उसके नेक्स्ट डे डिनर में भी वो बना, तो आप खुद ही अपने मम्मी के तरफ घूम के पूछोगे कि भाई और कोई सब्जी नहीं मिल रहा है क्या? मतलब आल्दो ये चीज आपको पसंद था, फिर भी रिपीटेडली वो कंजम्पशन पे यू डोंट लाइक। अभी यहाँ पे तो होमोजीनियस प्रोडक्ट कंज्यूम करने की बात हो रही है, और वो भी कैसे, तो कंटिन्यूअसली एक के बाद एक। ये आप अपना जो एग्जांपल था उसमें मैंने बताया कि आप लंच में डिनर में, लंच में डिनर में ऐसे कंज्यूम कर रहे हो गैप के साथ में, तो भी यू गेट इरिटेटेड। तो अगर सेम प्रोडक्ट एक के बाद एक कंटिन्यूअसली कंज्यूम किया जाएगा, देन इट वुड बी अ प्रॉब्लमेटिक कंसेप्ट। तो ये assumptions अनरियल है। और एक इसका assumption था रैशनैलिटी। ये लॉ सिर्फ रैशनल लोगों पे काम करता है, ऐसा इसका assumption था। बट कभी कभार हमको कुछ काम इरेशनली भी करने पड़ते हैं, तो purposefully some people may do some work irrationally, abnormally, as a shortcut path, then this law will not work। तो रियलिस्टिक लाइफ में ये पॉसिबल नहीं है, इसीलिए these are not possible, thus the physical or we can say practical application of this law is not possible। ये इसका फर्स्ट ड्रॉबैक है। The second drawback of this law is cardinal measurement। If you remember, मैंने आपको बताया था यूटिलिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर आपको बताया था, क्या? दैट यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड। पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी एमबीए एंट्रेंस, SYJC कॉम, TYB कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री, और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। कार्डिनली हम यूटिलिटी को नंबर्स में मेजर नहीं कर सकते, बट अगर आप इस थियोरी को, पूरे थियोरी को डिटेल में स्टडी करोगे, तो आप वहां पे क्या ऑब्जर्व कर रहे हो? व्हाट डू यू ऑब्जर्व ओवर देयर? कि हमने टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, ये सब जो है वो नंबर्स में मेजर किया है, जो कि रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। सो आई कैन से यूटिलिटी इज अ मेंटल फीलिंग, it's a mental concept। We have studied that it is a psychological concept। ये मेंटल है, मेंटल फीलिंग है, हम उसको फील कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट मेजर इट। अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये हम दो दोस्त लोग हैं, ए एंड बी, दोनों दोस्त हैं, दे कैन फील द फ्रेंडशिप, बट ये दोनों मिलके मेजर नहीं कर सकते कि आई एम योर 80% फ्रेंड, यू आर माई 90% फ्रेंड। ये मेजरमेंट नहीं होता है। यू कैन नॉट मेजर इट, यू कैन फील इट। तो ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा भी चीज उन्होंने एज्यूम करके रखा हुआ है। नॉट एप्लीकेबल टू इंडिविजिबल गुड्स। The law of diminishing marginal utility is not applicable to indivisible goods। तो क्वेश्चन ये आता है, सर ये इंडिविजिबल गुड्स क्या होते हैं? अभी लॉ अपने को क्या बोलता है? सेम कमोडिटी बार बार कंज्यूम करना है, बट कुछ कमोडिटीज ऐसे होते हैं जो
बार बार नहीं कंज्यूम किए जाते, बार बार नहीं लिए जाते हैं। जैसे आई कैन टेक एग्जांपल, टेलीविजन, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर्स एक्सेट्रा। आप अगर ऑब्जर्व करो, कोई भी कंज्यूमर ये सारे प्रोडक्ट जो है एक के बाद एक नहीं खरीदेगा। आपके पास एक वॉशिंग मशीन है तो आप इमीडिएटली दूसरा नहीं खरीदोगे, दूसरा खरीदा तो तीसरा नहीं खरीदोगे। So you are not going to purchase those goods one after the another. Thus, the law will not be applicable to this type of products. Then, constant marginal utility of money. The law of DMU has one assumption. इसका एक assumption था that the marginal utility of money will remain constant. It will remain constant. But real life में ये नहीं होता है. In real life, even the marginal utility of money declines as per modern economists. आज जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास से ये 2000 रुपीज का नोट अगर एक घूम गया तो आपको घर पे बहुत डांट पड़ेगी। क्यों डांट पड़ेगी? क्योंकि दिस 2000 रुपीज हैज यूटिलिटी फॉर अस, वी बिलोंग टू अ मिडिल क्लास फैमिली। अपने बहुत सारे वांट्स को वो सेटिस्फाई कर सकता है। बट अगर यही 2000 रुपीज मुकेश अंबानी के बच्चे से अगर घूम जाएगा, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों फर्क नहीं पड़ेगा? क्योंकि ही हैज ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी विथ हिम। तो मोर मनी लेस यूटिलिटी। बट अपने पास पैसा कम है, वी हैव मोर यूटिलिटी फॉर दैट। 2000 रुपीज में हम अपने बहुत सारे वांट्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं। So the marginal utility of money also declines as per modern economics. Then single want. Now this law is based on one assumption of homogeneity, homogeneous product. मतलब ये जो पार्ट था क्या बता रहा है कि कंज्यूमर विल कंज्यूम identical product, same type of product, the product which are same in size, shape, color, flavor, etc. बट क्या आपको लगता है कि रियल लाइफ में कंज्यूमर कोई सिंगल प्रोडक्ट या सिंगल वांट के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करता है? नहीं। अभी जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, अभी का जो फोटो मैं आपको बता रहा हूं वो फोटोग्राफ बहुत टेम्पटिंग फोटोग्राफ है। आई नो ये फोटोग्राफ देखने के बाद में आप लोग मन ही मन में मुझको बहुत सारी गालियां देने वाले हो। You may be missing this, right, in this lockdown period. अभी देखो कंज्यूमर यहाँ पे इस प्रोडक्ट में अगर आप देखोगे कि यहाँ पे वो मल्टीपल प्रोडक्ट्स को एक साथ कंज्यूम कर रहा है। वड़ा पाव ये अलग अलग प्रोडक्ट है। यहाँ पे देखो मीठा चटनी, सूखा चटनी, मिर्ची। एक ही वांट को सेटिस्फाई करने के लिए वो मल्टीपल प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहा है, राइट? फॉर अ सिंगल वांट ही इज कंज्यूमिंग मल्टीपल प्रोडक्ट। तो अगर हम होमोजिनिटी के कंसेप्ट को फॉलो करेंगे तो कंज्यूमर विल नॉट बी एबल टू डू दिस। Thus, this law fails to explain how to satisfy multiple wants, how to satisfy the wants of the consumer which are unending. So these are the criticisms of the law. Okay, so अभी हम जा रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ द लॉ की तरफ। क्रिटिसिजम्स आप सबने लिख लिया?
Okay. Now, importance of the law. We are now going to study the basic important aspect of the law. It is also called as a role, or some people call it as significance of the law. First one is consumers equilibrium. Consumers equilibrium. Remember, economics under the law of diminishing marginal utility states that a consumer will always consume a product till the point where marginal utility is either equal to price or is greater than price. रिमेंबर मार्जिनल यूटिलिटी या तो प्राइस के इक्वल रहेगा या उससे ज्यादा रहेगा तो ही कंज्यूमर कंज्यूम करेगा. द मोमेंट कंज्यूमर का मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस से कम हो जाएगा, if the marginal utility becomes less than the price, consumer will not consume that. अभी कभी कभार देखो, आप